اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوم عاشوراء زمانے جاہلیت میں قریش مکہ کے نزدیک بڑا محترم دن تھا۔ اسی دن خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالا جاتا تھا اور قریش اس دن روزہ رکھتے تھے۔ قیاس یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ روایات اس کے بارے میں ان تک پہنچی ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ قریش ملت ابراہیمی کی نسبت سے جو اچھے کام کرتے تھے، ان کاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتفاق و اشتراک فرماتے، اسی بنا پر حج میں بھی شرکت فرماتے تھے۔ اپنے اس اصول کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے ساتھ عاشوراء کا روزہ بھی رکھتے تھے، لیکن دوسروں کو اس کا حکم نہیں دیتے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائے اور یہاں یہود کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کا روزہ رکھتے دیکھا، اور ان کی یہ روایت پہنچی کہ یہ وہ مبارک تاریخ ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی تھی اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے روزے کا زیادہ اہتمام فرمایا اور مسلمانوں کو بھی عمومی حکم دیا کہ وہ بھی اس دن روزہ رکھا کریں۔ یہ بخاری کی حدیث میں ہے۔ بعض حدیثوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایسا تقییدی حکم جیسا حکم فرائض اور واجبات کے لیے دیا جاتا ہے۔ چنانچہ بخاری اور مسلم میں سلمہ بن اکوع اور ربیعہ بنت معوذ بن افرا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشوراء کی صبح مدینہ منورہ کے آس پاس کی ان بستیوں میں جن میں انصار رہتے تھے یہ اطلاع بھجوائی کہ جن لوگوں نے ابھی تک کچھ کھایا پیا نہ ہو وہ آج کے دن روزہ رکھیں، اور جنہوں نے کچھ کھا پی لیا ہے وہ بھی دن کے باقی حصے میں کچھ نہ کھائیں بلکہ وہ روزہ داروں کی طرح رہیں۔ یعنی رمضان المبارک میں روزے کی نیت، یعنی درمیان میں روزے کی نیت کی جا سکتی ہے نفلی روزے کی، اور جو شخص روزے دار ہو وہ روزہ رکھے، یعنی جس نے روزے کی نیت کر لی وہ روزہ پورا کرے۔ ربیعہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم خود بھی روزہ رکھتے اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی روزہ رکھواتے۔ ہم ان کو ایک اون کا کھلونا دے کر بہلائے رکھتے۔ جب کوئی بچہ کھانے کے لیے روتا تو وہی کھلونا دے دیتے یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا۔ اس دن کا جو روزہ ہے وہ مستحب ہے۔ اسی طرح جب بعد میں رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو عاشوراء کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی اور اس کی حیثیت ایک نفل روزے کی رہ گئی۔ بخاری اور مسلم کی یہ احادیث ہے، لیکن اس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزوں میں سب سے زیادہ اس روزے کا اہتمام فرماتے تھے، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی فضیلت والے دن کے روزے کا اہتمام بہت زیادہ کرتے نہیں دیکھا سوائے اس دن یعنی یوم عاشوراء کی، اور سوائے اس ماہ یعنی ماہ رمضان کی۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی طرز عمل سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے یہی سمجھا کہ نفل روزوں میں جس قدر اہتمام آپ یوم عاشوراء کے روزے کا کرتے تھے اتنا کسی دوسرے نفلی روزے کا نہیں کرتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزے کے سلسلے میں کسی بھی دن کو کسی دن پر فضیلت حاصل نہیں مگر
माह रमजान मुबारक को और योम आशूरा को, इनको दूसरे दिनों पर फजीलत हासिल है। हजरत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे उम्मीद है कि आशूरा के दिन का रोजा गुज़श्ता साल के गुनाहों का कफ़ारा हो जाएगा। इन अहादीस से जाहिर है कि योम आशूरा बहुत ही अज़मत और तक़द्दुस का हामिल है, लिहाजा हमें इस दिन की बरक़ात से भरपूर फैज़ उठाना चाहिए। योम आशूरा के साथ साथ शरीयत मुतहरा में मुहर्रम के पूरे ही महीने को खसूसी अजमत हासिल, नाचे 4 वजूह से इस माह को तक़द्दुस ज्यादा हासिल है। पहली वजह तो ये है कि अहादीस में इस माह की फजीलत वारिद हुई है। नाचे हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से किसी शख्स ने सवाल किया कि माह रमजान मुबारक के बाद कौन से महीने में रोजे रखूं, तो हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जवाब दिया, यही सवाल एक दफा एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी किया था और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया था कि यानी माह रमजान के बाद अगर तुमको रोजा रखना है तो माह मुहर्रम में रखो, क्योंकि वो अल्लाह ताला की खास रहमत का महीना है। इसमें एक ऐसा दिन है जिसमें अल्लाह ताला ने एक कौम की तौबा कबूल फरमाई और आइंदा भी एक कौम की तौबा इस दिन कबूल फरमाएगा। नीज हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी माह रमजान मुबारक के रोजों के बाद सबसे अफजल रोजा माह मुहर्रम का है। इसके बाद यानी माह रमजान मुबारक के रोजों के बाद सबसे अफजल रोजा माह मुहर्रमुल हराम का है। इसी तरह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी जो शख्स मुहर्रम के एक दिन में रोजा रखे, बस एक दिन में रोजा रखे, यानी जो शख्स मुहर्रम के एक दिन में रोजा रखे और उसको हर दिन के रोजे के बदले 30 दिन रोजा रखने का सवाब मिलेगा। दूसरी वजह यह मालूम होती है हदीस से कि ये शहरुल्लाह है, यानी अल्लाह ताला की खास रहमतों का महीना है। इस माह की अज़ाफत अल्लाह की तरफ करने से उसकी खसूसी अजमत और फजीलत साबित हुई। तीसरी वजह यह है कि ये महीना अशहरु हुरुमुन, यानी इन 4 महीनों में से है जिनको दूसरे महीनों पर एक खास मुकाम हासिल। वो 4 महीने ये हैं ज़िक़ादा, ज़िहज, मुहर्रमुल हराम, रजब। ये बुखारी और मुस्लिम की अहादीस है। चौथी वजह यह है कि इस्लामी साल की इब्तिदा इसी महीने से है। चुनाचे इमाम गजाली लिखते हैं कि माह मुहर्रम में रोजे की फजीलत, माह मुहर्रम में रोजों की फजीलत की वजह यह है कि इस महीने से साल का आगाज होता है, इसीलिए इसे नेकियों से मामूर करना चाहिए और अल्लाह सुब्हाना ताला से ये तवक्को रखनी चाहिए कि वो इन रोजों की बरकत पूरे साल रखेगा। हजरत अब्दुल्लाह बिन हशाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम साल या महीने के शुरू होने के लिए ये दुआ सीखते, अल्लाहुम्मा अदहिलहु अलैना बिल अम्नि वल ईमानी वस्सलामति वल इस्लाम व रिज़वानुन मिनर रहमानी व जवाजुम मिनश शैतान। अल्लाहुम्मा अदहिलहु अलैना बिल अम्नि वल ईमानी वस्सलामति वल इस्लाम व रिज़वानुन मिनर रहमानी व जवाजुम मिनश शैतान। ऐ अल्लाह, इस महीने को हमारे लिए अमन, ईमान, सलामती, इस्लाम, रहमान की रजा और शैतान से छुटकारा देने के साथ शुरू फरमा। ऐ अल्लाह, इस महीने को हमारे लिए अमन, ईमान, सलामती, इस्लाम, रहमान की रजा और शैतान से छुटकारे के साथ शुरू फरमा। मुहर्रम का महीना हुर्मत वाला महीना है। इस महीने में आपस में एक दूसरे पर जुल्म की ममानत है। कुरान मजीद में आता है, सूरत तौबा आयत नंबर 36, इन्न इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाहि यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़ि मिनहा अर्बअतुन हुरुमुन ज़ालिकद दीनुल क़य्यिम फला तुज़लिमू
फीहिन्न अनफुसकुम। मुहर्रम का महीना हुर्मत वाला महीना है। इस महीने में आपस में एक दूसरे पर जुल्म की ममानत है। कुरान मजीद में आया है सूरत तौबा आयत नंबर 36 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, इन्न इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरन फी किताबिल्लाहि यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़ि मिनहा अर्बअतुन हुरुमुन ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम फला तुज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम। बेशक महीनों की गिनती अल्लाह के नजदीक अल्लाह की किताब में 12 महीने हैं। जब से इसने आसमान और जमीन बनाए, इनमें से 4 महीने हुर्मत वाले हैं। ये सीधा दिन है, तो इन महीनों में अपनी जान पर जुल्म न करो। शरीयत इस्लामिया ने इस दिन के लिए दूसरी तालीम दी है कि इस दिन अपने अहलो अयाल पर खाने पीने में वुसअत और फरागी करना अच्छा है, क्योंकि इस अमल की बरकत से तमाम साल अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरागी रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है। चुनाचे हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी जो शख्स अशूरा के दिन अपने अहलो अयाल पर खाने पीने के सिलसिले में फरागी और वुसअत करेगा तो अल्लाह ताला पूरे साल इसके रिज़्क़ में वुसअत अता फरमाए। जैसा कि हम सबको मालूम है कि ये महीना और दिन अफसल है, तो इसमें हमें ज्यादा से ज्यादा नेक आमाल करने चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको दीन का सही फहम अता फरमाए और हर किस्म के गुनाहों और मुसीबतों से महफूज फरमाए और अपने और अपनी हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत और इताअत की दौलत उज़्मा से नवाजे। और इस महीने में हमें कोशिश करनी चाहिए कि किसी के साथ जुल्म और ज़्यादती न करें। कोशिश करें इस महीने की जो सबसे अफजल चीज़ है कि इसमें ज़्यादा रोज़े रखें। कम से कम हमें यौम आशूरा 9 और 10 का रोज़ा ज़रूर रखना चाहिए। कोशिश करें इस महीने में इबादत ज़्यादा करें, दुआएं ज़्यादा करें, अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करें। अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो हमारे रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, हमारी औलाद को नेक और सालिया कर दे। ऐ अल्लाह हम सबको माफ़ फरमा और हमारी औलाद को हमारी आंखों की ठंडक बना। अल्लाह ताला मुझे और आपको दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।